तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन वीडियो बताने वाला हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक की। तो जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के बारे में बात की है कि वो जब आएंगे तो वो शिया होंगे कि सुन्नी होंगे, किसी ने सवाल किया। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। Take a question from the center. My question is just a general question. What does the Quran say about Isa coming back and Imam Mehdi? And if he is to come back, now please think about it. Will he be a Sunni, Shia, or any other? Well, has a question that is Isa alayhi salam going to come? Is Mehdi alayhi salam going to come? And if he's going to come, will he be a Shia, Sunni? What will he be? There's a various hadith talking about the coming of Mehdi alayhi salam. The Quran speaks and says that the signs of Qiyamah would be Isa alayhi salam will come. Amongst the signs of Qiyamah is the coming of Isa alayhi salam. It's also mentioned in Surah Ma'idah chapter number 5 verse 116 that Isa alayhi salam says to Allah Bari Ta'ala that you be my witness. I never told them to worship me, but I said, Ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, my Lord and your Lord. So Isa alayhi salam is going to come. There are no less than 70 Sahih hadith saying that Isa alayhi salam is going to come again. Similarly, Mehdi alayhi salam. So before the Qiyamah, they're going to come. Regarding will they be Shia, will they be Sunni, what will they be? They will be Muslims. I had given the talk on unity in the Muslim Ummah in Manchester. I don't intend repeating here, it's a long talk. Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67, Abraham alayhi salam was not a Jew or a Christian, he was a Muslim. Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 52, Isa alayhi salam was a Muslim. Quran says in Surah Hajj chapter 22 verse number 78, that Allah has called you, means us, as Muslims. Allah says in Surah Al-Imran chapter 3 verse 64, فَقُلُوا شَهِدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Say ye bear witness that ye are Muslims. Allah says in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Say that you are a Muslim. Muslim, Muslim, Muslim. No less than 37 times Allah uses the word Muslim, Muslim, Muslim. 22 times as Muslimun and 15 times as Muslimin. So the best label which Allah has given us, that is Muslim. And Isa alayhi salam also, and Mehdi Islam, inshallah, they'll come as Muslims. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। आप लोगों ने भी जवाब सुना है दोस्तों कि जब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे दुनिया में कि वो शिया होंगे या सुन्नी होंगे, इस तरह बहुत से लोगों के जहन में क्वेश्चन होते हैं और वो पूछते हैं। तो जैसे कि दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है कि कुरान मजीद में कई बार जो है अल्लाह ताला ने जो है 33 मतलब जो है कुरान मजीद में जिक्र किया गया है कि मुसलमान का जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो भी मुसलमान होंगे। वो मुसलमान वो से कहते हैं जब अल्लाह ताला के कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ ले और उनके जितने अहकामात है कुरान मजीद के मुताबिक वो सारा उनको जो मानते हैं। तो दोस्तों वही जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वही अहकामात जो है उन्हीं पर उतरेंगे। जितने भी लोगों के जहनों में क्वेश्चन होते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब दुनिया में आएंगे या जब इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे तो वो मुसलमान होंगे या कोई एशिया होंगे या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुना है तो बहुत बेहतरीन जवाब था दोस्तों। इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में क्वेश्चन आते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में तो वो किस जो है तबके से ताल्लुक़ करेंगे, वो शिया होंगे या सुन्नी होंगे। तो दोस्तों जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो वो अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह आप गवाह रहना या आपको मैंने गवाह बनाया था कि इन लोगों को जो मैंने कहा था कि मेरी इबादत नहीं करो बल्कि अल्लाह की इबादत करो। लेकिन आज के यही लोग जो दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो लोग थे जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा था कि एक अल्लाह की इबादत करो, वही लोग जो है आजकल भटके हुए हैं, रास्तों से भटके हुए हैं, सिरात मुस्तकीम के रास्ते से भटके हुए हैं और जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। लेकिन जब क़यामत नज़दीक आएगी दोस्तों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो यही लोग होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं लोगों से कहेंगे कि मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरी इबादत करो बल्कि मैंने आपको यही कहा था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो। और दोस्तों यही लोग होंगे जो कि अभी इस जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो इबादत करते हैं, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हीं को कहेंगे दोस्तों कि आप मेरे सामने से हट जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये लोग ना समझ लोग हैं दोस्तों।
बल्कि जितने भी किताबें हैं, जितने भी अगर वो वेद है, अगर वो कुरान मजीद है, अगर वो बाइबल है दोस्तों, इन सब किताबों से दोस्तों जो है वो ज़ाहिर होता है कि हमारा जो है अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करो। आप इंसान की इबादत कैसे कर सकते हो? तो फिर वही इंसान जो कि अल्लाह ताला ने आपकी हिदायत के लिए भेजा है, आपकी रहनुमाई के लिए भेजा है, उसने आपको यही बताया है कि जिस खुदा ने मुझे पैदा किया है आप उसी की इबादत करो। लेकिन यही लोग थे दोस्तों कि खुदा को छोड़कर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो इबादत करते हैं। ना समझ लोगे ये तब इनको पता चलेगा जब क़यामत नज़दीक आएगी, जब अल्लाह ताला इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों को किसने कहा था कि जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आप इबादत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी दिन क़यामत के दिन यही जवाब, उनका भी यही जवाब होगा कि अल्लाह ताला मैंने इनको यही नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो, बल्कि मैंने इनको यही कहा था कि आप खुदा की इबादत करो। लेकिन यही लोग हैं जो कि सही रास्तों से भटके हुए हैं दोस्तों। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इल्म रखते हैं, इल्म हासिल करके फिर सही रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन बहुत से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इल्म रखते हुए भी वो गुमराह होते हैं। अल्लाह ताला इनको दोस्तों जितने भी लोग जो है वो अपने सही दीन से भटके हुए हैं या सिरात मुस्तकीम के रास्ते से भटके हुए, अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पर लाए। आप लोगों ने भी दोस्तों जवाब सुना होगा, जवाब सुना है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कि बहुत बेहतरीन जवाब था। और जितने भी लोग थे अगर उनके ज़हन में कोई भी ऐसे क्वेश्चन मौजूद हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आएंगे कि वो शिया होंगे या सुन्नी होंगे, तो उन लोगों ने भी जवाब सुन दिया होगा कि वो जब दुनिया में आएंगे तो वो मुसलमान होंगे। बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई बहुत बेहतरीन जवाब था। अल्लाह ताला जो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इल्म में और भी इजाफा करे कि इस तरह जो है वो मालूमात वाली वीडियो बनाता है और बहुत बेहतरीन बयान करते हैं। तो हम दुआई कर सकते हैं उनके लिए। और जो लोग सही रास्ते से भटके हुए हैं, सिरात मुस्तकीम के रास्ते से भटके हुए, अल्लाह ताला ही उनको हदायत दे कि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर कोई भी ऐसे कमेंट हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वस्सलाम।